नमस्कार दोस्त। तो एएनआई का ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक का पूरा कंट्रोवर्सी है ये काफी ब्लो अप हो गया ट्विटर पे। एंड दिस गाय कॉल्ड साकेत गोखले, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट द फिटनेस वाला साकेत गोखले। इन्होंने इस पे ट्वीट किया है, इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कॉपीराइट स्ट्राइक्स अगेंस्ट यूट्यूब क्रिएटर्स इन इंडिया for use of clips from wire agencies have received messages from numerous YouTube creators in India about the content being subject to copyright strikes merely for the use of news clip from a news wire agency in their videos. Some YouTubers have alleged that they have been asked to pay lakhs of rupees to remove the copyright strikes. This is a form of extortion, especially considering that some news agencies enjoy an unofficial monopoly when it comes to reporting of matters related to government of India. In brazen disregard of the freedom of press, the Modi government favors a particular news agency where exclusive access is given for some news bites and coverage of public events. Hey Bhagwan, everything is about politics yahan pe yaar. It's the same situation as Donald Trump not answering CNN के क्वेश्चंस क्योंकि वो उनको फेक न्यूज़ कहता है। तो क्लिंटन न्यूज़ नेटवर्क को डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इज़ द सेम थिंग दैट आई एम सीइंग हियर कि भाई आप सबको इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे। मोदी सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ एजेंसी को जो उनको गुड लाइट में दिखा रही है उन्हीं को फेवर कर रही है। सर सब सरकारें करती हैं, सब करती हैं। This is extremely concerning and has serious repercussions on freedom of speech of independent YouTube creators, use of copyright strikes in order to extract high payments from independent creators, even in cases of fair use or fair dealing, as it is called in India, of news agency content is a form of quasi-private imposed censorship aided by government which favors one news agency over another. Sir, let's just get this one thing very clear कि ये न्यूज एजेंसी वर्सेस न्यूज एजेंसी या सरकार वर्सेस सरकार के बारे में नहीं है, नॉर इज इट अबाउट द रूलिंग सरकार वर्सेस द इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स। इट्स अबाउट एक न्यूज एजेंसी के रॉन्ग प्रैक्टिसेस। इट्स अबाउट देम फाइंडिंग लीगल लूप होल्स in terms and conditions of a platform to exploit it and extort money out of independent creators. This has nothing to do with politics, क्योंकि अगर politics के बारे में होता तो ना ही तो रजत पवार को स्ट्राइक आती और ना ही थगेश को आती, क्योंकि these people lean on the right। और इन्होंने सिंदूर अटैक में सरकार को ही सपोर्ट करते हुए और देशभक्ति की ही वीडियो बनाई थी। आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन जिसने इस बीच में देश को सपोर्ट करते हुए वीडियो ना बनाई हो। सो आई डोंट थिंक एएनआई की घटिया हरकतें हैज एनीथिंग टू डू विद लेफ्ट और राइट का एजेंडा। क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि मोहक के साथ बहुत अच्छा हुआ, इन सबके चैनल्स बंद हो जाने चाहिए क्योंकि वो ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन। भाई जस्ट बिकॉज अ पर्सन डज नॉट अग्री विद यू, does not see things from your perspective, does not support the same political party as you, does not mean कि आप उसका रोटी कमाने का जरिया ले जाओगे, does not mean कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। So let's not celebrate that. Do not be so blinded by your political views कि आप भूल जाओ कि सही और गलत का फर्क क्या है। This is a matter that deserves close examination by Parliament. Have written to YouTube India asking them for their explanation of such cases of copyright strikes on independent content creators. I'm glad ये चीज़ escalate हो रही है और उसको इस तरह का attention मिल रहा है, क्योंकि YouTube के attention में जब तक इस तरीके से ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक ये लोग इन practices के against कोई harsh step नहीं लेंगे। I really think YouTube needs to set an example, किसी एक को permanently ban करके या फिर किसी एक को बहुत ही हार्श पनिशमेंट देके कि आपका पूरा चैनल हम डिमोनेटाइज कर दे रहे हैं या आपको हम बिजनेस अपने साथ अलाउ नहीं करेंगे, काइंड ऑफ वाली चीज करके एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि भाई फ्यूचर में कोई भी ऐसी काम करने की हिम्मत ना करे। इसके ऊपर स्मिता प्रकाश जी जो कि ANI न्यूज की एडिटर हैं, उन्होंने लिखा है, पायरेसी इज नॉट फ्री स्पीच इज व्हाई यूट्यूबर्स मस्ट पे ANI's कंटेंट। स्मिता जी ने 2009 में ट्विटर ज्वाइन किया था और बहुत सारे और लोगों ने भी 2009 में ट्विटर ज्वाइन किया था। इट वॉज ट्रेंडिंग बैक इन द डे, बट कुछ ट्वीट्स पढ़ के मुझे कभी कभार लगता है कि कुछ लोगों का दिमाग भी 2009 में छूट चुका है। इसके ऊपर लोगों ने इनको रिप्लाई देने शुरू किए, जस्ट हेल्पिंग यू विद डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सटॉर्शन मैम, extracting large sums of money by threatening to get channels deleted isn't making creators pay for ANI content but extortion. Nothing can explain the demand of 18 lakhs for 9 to 10 seconds of videos or 45 lakhs for 10 plus 11 seconds. And here's the funny part. अगर थगेश ने बस 2 सेकंड की क्लिप यूज की है तो 2 सेकंड के लिए तो कोई म्यूजिक पे भी कॉपीराइट नहीं देता।
5 सेकंड से नीचे नीचे अलाउड होता है कोई भी मूवी का क्लिप या कोई भी गाने का क्लिप। इट्स अलाउड, उसके लिए कभी कोई कॉपीराइट नहीं देता, उसको एल्गोरिदम भी नहीं पकड़ता। नो वन इज सेइंग दैट ANI शुडंट बी मोनेटाइजिंग इट्स कंटेंट. It should and must, but forcing individual creators to buy subscription worth lakhs for what can be called fair use is cheap and exploitive. अब देखो ये बहुत लॉजिकल चीज है और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट चोर अपनी चोरी कभी मानता नहीं है। तो स्मिता जी का इस पर रिप्लाई देखो। You have no clue about ANI's price structure for subscriptions and you are terming ANI's model of operations as loot. Cannot engage in a conversation when you begin with such words. तो मैम मैं मानता हूं एज एडिटर ऑफ अ बिग न्यूज आउटलेट और मीडिया हाउस आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर होगा और आपको पता है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स डॉज कैसे करने हैं, कब उठ के भाग जाना है कॉन्वर्सेशन से। बट इंटरनेट के कॉन्वर्सेशन इतने आसान नहीं होते। जस्ट बिकॉज आपने ट्वीट डाल दिया कि मैं इसके बारे में बात करूंगी डज नॉट मीन इसके बारे में कोई और बात नहीं करेगा। अब इनके इस बिग ब्रेन लॉजिक को काउंटर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा देता हूं अपने चैनल से ही। तो ये एक वीडियो है, इट्स कॉल्ड ज़ॉम्बी द लिविंग डेड और ये राउंड टू हेल के चैनल पे है। मैं रिएक्शंस किया करता था ऐसे वीडियोस पे पहले। यूजुअली राउंड टू हेल जो है वो एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड साउंड्स, म्यूजिक एंड व्हाट नॉट यूज करता है। एंड दे हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ एपिडेमिक साउंड्स जहां से वो उन चीजों को उठाते हैं। मैं जब भी इसके ऊपर रिएक्शन किया करता था मुझे मल्टीपल क्लेम्स एक ही वीडियो पे आते थे, जैसे ब्लड मनी, लेवाइथन, ब्ला 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 ब्ला। ये सारे के सारे जितने भी तुम देख रहे हो ये सारे क्लेम्स एक ही कंपनी से मुझे आए हैं एंड इट्स कॉल्ड एपिडेमिक साउंड्स ऑन बिहाफ ऑफ एपिडेमिक साउंड्स। क्योंकि एपिडेमिक साउंड्स इन सारे के सारे ट्रैक्स को ओन करता है। उनका एक लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है जहां आप उनका सब्सक्रिप्शन खरीदते हो आइदर मंथली और ईयरली, और उसके बाद आप उनके साउंड्स यूज कर सकते हो। इवन अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करवाते हो एक्सपायर होने के बाद तो आपको क्लेम्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपने साउंड्स यूज किए हैं वो विद इन योर मेंबरशिप टाइम यूज किए हैं एंड यू हैव लाइसेंस फॉर दैट पीरियड। एंड यूजुअली मेरे ख्याल से अगर तुम इनका ईयरली भी मेंबरशिप लोगे, आई एम नॉट श्योर कितना होता है, यूजुअली 2,500 से 3,000 का भी हो सकता है, बट महंगे से महंगा भी अगर तुम देखोगे तो 8,000 से 12,000 ईयरली, अगर तुम बहुत प्रीमियम प्लान्स की तरफ जाते हो तो शायद, आई एम नॉट श्योर। तो ये एक लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है। दे नेवर ब्लॉक्ड माई वीडियो, दे नेवर स्ट्राइक्ड माई वीडियो डाउन, ऑल दे डिड वाज इन्होंने मोनेटाइजेशन मेरे वीडियो पे ऑफ कर दिया। तो एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि जैसे ही आप हमारा मेंबरशिप खरीदोगे यू विल गेट द लाइसेंस टू यूज दीज साउंड्स, और फिर आप चाहे रिएक्ट करो, आप चाहे यूज करो, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, हमारे साउंड यूज करने के लिए आपको क्लेम नहीं आएगा एंड यू विल बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। सेकंड एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूं कैरी मिनाटी का। अब अजय कभी भी अपने ओरिजिनल कंटेंट पे किसी को स्ट्राइक डाउन नहीं करता, कभी भी क्लेम्स नहीं डालता है। अगर YouTube उसको पीछे से लिमिटेड कर दे मोनेटाइजेशन को क्योंकि उसने बीच में गाली दे रखी है तो अलग बात है, बट हमेशा मेरा मोनेटाइजेशन ऑन रहा है और वीडियो कभी भी ब्लॉक नहीं हुआ। बट एवरी टाइम ही डज दीज बिग वेल प्रोड्यूस्ड कॉमेडी स्केचेस और स्किट्स, तो क्योंकि अब एक पूरी टीम इन्वॉल्व्ड है, बहुत ज्यादा एफर्ट, डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग लग रही है, लोकेशन चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से इतने एफर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लेम लगाते हैं। जैसे कि ये वीडियो मैंने डाला है मोटिवेशनल स्पीकर पैरोडी का बाय कैरी मिनाटी। इसको क्लेम किया है ODE एफिलिएट ने ऑन बिहाफ ऑफ कैरी मिनाटी। वीडियो वंस अगेन ब्लॉक्ड नहीं है, विजिबल है, जस्ट मैं इसको मोनेटाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल है। आई कैन यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल और डिस्कशन पर्पसेस, बट ये मुझे इतना ज्यादा क्योंकि मैंने क्लिप यूज किया है तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे इसको मोनेटाइज करना, बिकॉज द कंटेंट डज नॉट बिलोंग टू मी। आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ कॉपीराइट क्लेम्स जो कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आते हैं। ये मैंने प्रार्थना कृष्णा का किसी टाइम पे रिव्यू किया था, रिएक्शन किया था, एंड इस पे कंटेंट टाइप ऑडियो क्लेम आया हुआ है। Claimants believe music on behalf of कलमकार म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड। मोनेटाइजेशन ऑफ है, ये मेरे चैनल को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। इट इज नॉट अ स्ट्राइक, इट इज नॉट ब्लॉक्ड एनीवेयर। और सेम एबीवे के कंटेंट के साथ भी होता है। इट्स वंस अगेन बाय बिलीव म्यूजिक ऑन बिहाफ ऑफ बंटाई स्टूडियो। वीडियो ब्लॉक नहीं है, बस मोनेटाइज नहीं है। अब ऐसे केसेस की बात कर लेते हैं जहां कोई इंसान नहीं चाहता कि उसका कंटेंट किसी भी तरीके से यूज हो किसी और के वीडियो में, एंड दैट कैन बी फॉर एनी रीजन। शायद वो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंटेंट का नहीं चाहता, शायद वो उसको OTT के पीछे बंद करना चाहता है, शायद उसके कंटेंट से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है और वो उसको कंप्लीटली इंटरनेट से रिमूव करवा देना चाहता है। ऐसे में वीडियो के रैंडम क्लिप्स को कॉपीराइट करवा के
और उनको एल्गोरिदम के थ्रू ढूंढा जाता है और उसके बाद हर वीडियो को जो उस क्लिप को यूज कर रही है ब्लॉक कर दिया जाता है। द सेम थिंग हैपेंड विद समय रैना's लेटेंट वीडियोस। कंट्रोवर्सी होने के बहुत टाइम बाद तक भी मेरे चैनल पे लेटेंट के रिएक्शंस और वीडियोस पूरे पड़े रहे, बट ऑब्वियसली समय रैना के लिए एक एक क्लिप जो है लेटेंट का बहुत ट्रबलसम हो गया था, क्योंकि उसको उठा के इनके अगेंस्ट पॉइंट्स ढूंढे जा रहे थे न्यूज में उछालने के लिए, तो इन्होंने सारे के सारे एपिसोड्स ब्लॉक करवा दिए। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऑडियो विजुअल क्लेम आया है ऑन बिहाफ ऑफ समय रैना बाय OML affiliate. Visibility cannot be seen, वीडियो ब्लॉक हो चुका है, कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड। इससे पहले वीडियो मोनेटाइज्ड भी था और विजिबल भी था, बट ये स्ट्राइक नहीं है, इससे मेरा चैनल अफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरीका है पायरेसी से बचने का, बट अकॉर्डिंग टू ANI न्यूज एंड इट्स एडिटर, पायरेसी से बचने के लिए ना ही वो चीजों को क्लेम करेंगे, ना ब्लॉक करवाएंगे, ना मेल लिख के बात करेंगे यूट्यूबर से उस वीडियो को रिमूव करने के लिए या उस क्लिप को, सीधा स्ट्राइक मारेंगे। दो स्ट्राइक के बाद कॉल जाएगा कि आपके चैनल को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तीसरा स्ट्राइक मारते ही अगर आपने हमें इतना बड़ा अमाउंट एनुअल मेंबरशिप के नाम पे और पेनल्टीज के नाम पे पे नहीं किया। तो स्मिता जी, इफ अकॉर्डिंग टू यू पायरेसी इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, then blackmailing independent creators into buying your stupid ass subscription is not a legitimate business model. कुछ केसेस में स्ट्राइक फेयर होता है, जैसे there was this channel जो एक टाइम मेरे नजर में आया था, it was called Style with Shaggy Dushing करके, I don't know the name of the channel exactly, but उस लड़के ने क्या किया, he was a fan of MC Stan. तो बिग बॉस जब OTT पे आया था और उसमें MC Stan आया था, उसने इनिशियली छोटे छोटे क्लिप्स उठा के MC Stan के और उन पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर कि अब वो सारे ही एपिसोड के क्लिप्स उठा रहा है और आधे आधे घंटे के वीडियोस बना रहा है, जिसमें वो मोस्टली बैठ के बस देख रहा होता था वीडियो को और पूरा आधा घंटा बिग बॉस चल रहा होता था। अब ये एक शो के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है तुम खुद सोचो कि उस लड़के के पर वीडियो 1.5 से 2 मिलियन व्यूज आने शुरू हो गए थे। इससे एक OTT प्लेटफॉर्म पे चलने वाले शो का बिजनेस कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, उसके रेवेन्यू में कितना बड़ा डेंट पड़ सकता है, तुम इसके बारे में सोचो। इसीलिए उस OTT प्लेटफॉर्म ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उस लड़के के सारे वीडियो स्ट्राइक डाउन कर दिए और रातों रात चैनल खत्म हो गया। इन दिस केस ये फेयर था क्योंकि उस लड़के को पता था वो गलत कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि उसकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी और उसको पैसा बनता जा रहा था, तो वो जब तक कर सकता था उस काम को उसने किया। एक दूसरे केस में कॉपीराइट स्ट्राइक फेयर तब माना जाता है जब किसी ने पूरा आपके वीडियो का स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी कर लिया है, बोलने का स्टाइल एंड फ्रेम बाय फ्रेम ग्राफिक्स कॉपी कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लोकस का, जेनजी वे का या किसी भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले चैनल का उठा के वीडियो और एज माय वीडियो प्रेजेंट कर देता हूं, उनकी शक्ल वाले फ्रेम्स हटा के अपनी शक्ल वाले फ्रेम अड़ा देता हूं, एग्जैक्टली वही चीजें बोल देता हूं वीडियो में जो उन्होंने बोली हुई हैं और ग्राफिक्स भी सेम रोल होते रहते हैं, तो एल्गोरिदम उस सब को मैच करके उस कंटेंट क्रिएटर को बता देगा कि आपका कंटेंट कहीं और यूज हो रहा है। इन दैट केस वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये काम मत करो, हमें आपको स्ट्राइक करना पड़ जाएगा, या फिर वो डायरेक्ट स्ट्राइक भी कर सकते हैं, एंड इन दैट केस ऑल्सो वो स्ट्राइक फेयर माना जाएगा। ऐसा ही कुछ इस DS एजुकेशन नाम के चैनल के साथ हुआ। ये छोटा बच्चा बेसिकली ध्रुव राठी से काफी इंस्पायर्ड था, तो इसने ध्रुव राठी टाइप ही वीडियो बनाने शुरू कर दिए एरिया 51 पे या डीप सी पे, एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो एक्चुअली किस लेवल पे कॉपी कर रहा है ध्रुव को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कई सालों से रहस्य, साजिश और कल्पना। नमस्कार दोस्त। What's crazy to me is इसने बॉडी लैंग्वेज तक ध्रुव का कॉपी कर रखा है। He is that inspired by him. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने बॉडी लैंग्वेज या बोलने का स्टाइल या प्रेजेंटेशन स्टाइल कॉपी कर लिया है। प्रॉब्लम एक वीडियो में यहाँ आया कि इसने पूरे वीडियो के ग्राफिक्स उठा के कॉपी कर लिए फ्रेम बाय फ्रेम ध्रुव के, एंड ध्रुव हैड टू गो अहेड एंड वॉर्न दिस चाइल्ड, और उसने बहुत ही सटल और प्यारे वे में उस बच्चे को समझाया कि देखो भाई, मेरा वीडियो क्लिप जो है आप यूज मत करो, आप में पोटेंशियल है एक अच्छा यूट्यूबर बनने का, आई डोंट वांट टू स्ट्राइक योर चैनल फॉर ऑल ऑफ दिस। और ध्रुव ने कभी भी उसको उस चीज के लिए स्ट्राइक नहीं दिया। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स हाउ अ कम्युनिटी इज बिल्ट। कई बार आपको पता होता है कि लोग आपके थंबनेल के स्टाइल्स, आपका बोलने का स्टाइल, आपका रिएक्शन का, डिस्कशन का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपका भी आइडिया 100% ओरिजिनल नहीं है, तो लोगों को हमेशा वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के या बातचीत करके आप मामले को सुलटा सकते हो, बट नहीं, ANI न्यूज ऐसा नहीं करेगा। इनफैक्ट कोई भी बड़ा मीडिया आउटलेट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग जेलस हैं, इनके ईगोज हर्ट होते हैं इस बात से कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स बिना एक 20, 30, 40 लोगों की टीम के, जिनको पे करना पड़ता है,
वो बैठ के वीडियोस बना रहे हैं जो कि इनसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इनसे ज़्यादा रीच है उनकी, उनसे ज़्यादा कमा के जाते हैं। और इसीलिए इन्होंने ये मेथड चूज किया है कि अब इनको ब्लैकमेल करना शुरू करो, अब इनसे दुश्मनियां निकालो। तो भाई अपने इस दुश्मनी के लो लेवल ख्याल से ऊपर उठो जो तुम्हें ये कहता है कि जस्ट बिकॉज एक इंसान तुम्हारे पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड से अग्री नहीं करता तो वो एक गंदा इंसान है। इस बात से बाहर आओ और कम्युनिटी को सपोर्ट करो इस टाइम पे। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस। भाई अगर तुझे कोई किडनैप करके ज़बरदस्ती वीडियो में बिठा रहा है तो अगली वीडियो में वाइट टी शर्ट पहन के आई हो। हाँ भाई मुझे यही लग रहा है, हमें इसकी मदद करनी होगी।